First of all, good evening to all of you. Welcome back. As we had done the chapter organizing as a summary, today we will be doing the same along with NCERT. I'm starting it along with NCERT. As in the last session, I told you that organizing is the second step, or you can say second function. पहले हम लोग करते हैं planning and then we move to the second step or second function called organizing. So let us now first of all read one case study of Wipro. It is not quite there yet, but the goal is certainly within reach. ये जैसे आपके बच्चे ये सब लिखे होते हैं ना, इन सबको आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, because many times a question comes from these kinds of quotes and it is asked कि ये किस concept या किस function से related है. One of the India's largest IT solution providers, Wipro, is taking on the likes of IBM and Accenture in its efforts to be included among the largest and most successful technology services companies in the world. Because IBM is technology and Accenture is providing the service. Restructuring Wipro was considered the important step during the past few months. विप्रो अब यहां से आपका जो है मे बी यू आर आस्क ये कौन सा फंक्शन है. दिस कैन बी अ केस स्टडी. द नेम ऑफ द कंपनी मे बी चेंज्ड. विप्रो सेपरेटेड इनटू सेवरल सब्सिडायरीज बाय प्रोडक्ट लाइन. उस दिन जब आपको मैंने करवाया था तो आई टोल्ड यू कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क, that depends on the kinds of product we are dealing. अगर सिमिलर है तो हम फंक्शनल पर चलते हैं. अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं या बिल्कुल वेरीड हैं, देन वी गो फॉर डिविजनल. Telecommunication, engineering, financial services. This is how they have divided the department, division. Each subsidiary brings in about $300 million in annual earnings and is sufficient with their own accounting, personnel and administrative function. यानी कि इन सब के अलग अलग जो है functions है, यानी ये इनका divisional setup है. This is a divisional setup. अगर paper में question आ गया, see, they are having telecommunication, they are having engineering, they are having financial. और इनके नीचे इनके अलग अलग फंक्शंस हैं सबके. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर. इफ इट कम्स एज योर पेपर तो आप लोग इसको लिख सकते हो. दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर. विप्रो शिफ्टेड फ्रॉम अ centralized to decentralized management system. All responsibilities for grow laid within the management of each entity. मतलब ये आपका सेंट्रलाइजेशन है जो मेन आपका कोर फंक्शन है, और बाकी जो डे टू डे है दैट हैज बीन गिवन टू द लोअर लेवल. We try to de-layer the organization and empower business leaders with a much higher degree of growth and responsibility. We removed an entire layer of executives. So this way they have shifted from centralized authority to decentralization. So is particular, if we are looking into this particular case study, we have found the main function is organizing, उसके अंदर structural management है, and then जो second वो है centralization and decentralization. Once the plans have been laid out and objectives specified therein,
The next step is to organize resources in a manner which leads to accomplishment of objective. यानी कि प्लान आपने कर लिया है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव है वो भी कर दिया है. अब जो आपके पास मैन पावर, आपके पास जो मतलब कि फाइनेंशियल पावर्स एंड अदर्स हैं, उनको आपने उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना है. A critical issue in accomplishing the goals specified in the planning process is structuring the work of an organization to adapt to the dynamic business environment. The activities of an environment must be organized in such a manner that plans can be successfully implemented. For planning, आपको इन सब के लिए जरूरत नहीं है. When there would be important, I'll write down. For planning to be a fruitful number of considerations like resources, will be needed. Optimum utilization of the same translation of work into attainable tasks. Empowering the workforce to accomplish these tasks need to be understood and dealt with properly. It is evident from the way Wipro has moved towards reaching for its goal of becoming a globally successful technology company. Organizing plays a significant role in implementation of plans. So what they have done, Wipro organized itself in a manner that allowed customer orientation to dominate over other goals. मतलब उनका जो गोल था वो था कस्टमर्स को ज्यादा पकड़ना, ओरिएंट करना, यानी कि जो उनका काम होगा that would be more focused on customer and diversified on the basis of product lines. As I said, it is a divisional structure. It also modified the relation between the management hierarchy to suit the goals, जो आपका centralization and decentralization है. The management function of organizing ensures efforts are directed towards the attainment of goal laid down in the planning function in such a manner that resources are used optimally, and people are able to work collectively and effectively for a common purpose. Thus, in this context of effective management, organization function earns due importance. Means आपको प्लान को एक्शन में लेकर आना है. It leads, सबसे पहले जब हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता काम को हमने डिवाइड करना, यानी कि दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रक्चर which includes the designing of rules to be fulfilled by suitably skilled people and defining the interrelations, जो उनके नीचे काम करेंगे उसके साथ what will be their relation, how the work will be done between these roles, so that ambiguity का मतलब होता है मतलब जो आपका confusion है, that ambiguity is confusion in performance of duties can be eliminated. Not only is this important for productive cooperation between the personnel, but also for authority, responsibility, and grouping of the activities. Now, ये आपके स्कूल के अंदर का जो मैंने जब took it, I also gave you some examples ki how we divide the work into different areas. School ke andar bhi not all the work is done by the management, not all the work is done by the teachers, not all the work is done by the office staff. Certain things are divided according to their roles. यहाँ पर आपका है, have you ever paid attention to how the school feat you enjoy actually takes place? What goes behind the scene? The whole activity is divided into task group like food committee, decoration committee, ticketing committee. They are under overall supervision of the official in charge. Coordinating relations and are established among the various groups. And all the above activities are part of organizing function. यानी कि आपके स्कूल के अंदर से there is a feat. Now the feat cannot be done बहुत मतलब कि छोटे लेवल पर भी होता, बड़े लेवल पर भी होता. But how do we do?
देयर वुड बी, सबसे पहले तो वी वुड आइडेंटिफाई व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड द थीम ऑफ द फीट। स्पोर्ट्स में होते हैं, आपके दिवाली के दौरान होते हैं, देर आर सर्टन एरियाज। कई बार फीट होता है जस्ट अ जनरल, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी फेस्टिवल ऑल्सो। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हमें फीट में क्या क्या होगा। एक मोटे मोटे तौर पे जब हम फीट पे जाते हैं तो क्या होता है, खाना होता है, पीना होता है, नाच होता है, गाना होता है, बड़े सारे आपके जो है स्टॉल्स होते हैं जहाँ गेम्स होते हैं। इन सम ऑफ द स्कूल्स इवन द स्टॉल्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, सेलिंग आउट द थिंग्स आर आल्सो देयर। तो हमने पहले जो है ये चीज कर ली। फिर हमारा सेकंड काम आता है, हमें उस फीड को कहाँ करना है। से वी आर डीलिंग इट इन द स्कूल प्रेमिसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द स्कूल ओनली। तो अब हमने स्कूल में जैसे ही ग्राउंड को लिया, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड के किस एरिया में हमने फीट मतलब रखना है। तो क्या करेंगे, हम सारे काम को डिवाइड करें। Then say the sports teacher, yeah, sports teachers, group of teachers are responsible for the ground clearance. Then हम लोग जो है टीचर्स की ड्यूटीज लगाते हैं, बच्चों की ड्यूटीज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या स्टॉल्स लगेंगे, वी गिव देम द टाइम। फिर हमारे पास आ जाता है एक स्टॉल, तो उसके लिए हम बजट बजट सेट कर देते हैं। नाउ से हमारे पास 10 स्टॉल्स है, वी आर नॉट गोइंग ऑन एन इलॉबरेट मैनर, 10 स्टॉल्स है, तो हमें उसको कहाँ रखना है, देन हाउ इट हैज टू बी, हु इज गोइंग टू बी, ये सारी चीजों को हम रखते हैं। एंड देन वंस दीज थिंग्स आर, मतलब कि हमारा अपना एक प्लान बन गया है, फिर हम देखते हैं कि हु विल बी द इंचार्ज, उनके नीचे कौन कौन काम करेगा, किस किस के लिए, डेकोरेशन के लिए कौन जाएगा, टिकट्स के लिए कौन जाएगा, इस तरीके से वे डिवाइडेड, एंड दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग कम्स। बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ कंपनी, इसका जो काम होता है वो थोड़ा और सीरियस नोट पर होता है। स्कूल फेट में गलतियां होंगी तो वी डोंट माइंड इट बिकॉज दैट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी, वहां वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर, बिकॉज पूरी की पूरी कंपनी का जो सेटअप होता है वो स्ट्रक्चर पे होता है। Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives. Organizing can be defined as a process that initiates the implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying the resources for attainment of identified and desired goals. This can be there as a one marker question. जो definitions होते हैं वो normally one class या identify करो। Organizing involves a series of steps that need to be taken in order to achieve the desired goal. Suppose 12 students work for the school library in the summer vacations. One afternoon, they are told to unload a shipment of new releases, stock the bookshelves, and then dispose of the waste, जो मतलब पैकेजिंग वगैरह से आएगा। अगर सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सभी कहेंगे मैं यही काम करूंगा जो सबसे आसान है। हो सकता है दो जनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम हो। However, if one student supervises the work by grouping students, dividing each group their quota, and developing their reporting relations, will be done better. अब अगर वही काम को हम बोलते हैं ठीक है 12 बच्चे हैं, एक बच्चे को हमने हेड बना दिया, उसके हमने 4 ग्रुप्स बना दिए हैं, या फिर हो सकता है एक टीचर है और उसके नीचे चार 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 के आपके जो है 3 ग्रुप्स बन गए हैं। एक जो है उसका काम है अनलोड करना, दूसरे का काम है उसे स्टॉक करना, और तीसरे का काम है डिस्पोज करना। मतलब वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे आपके जो काम करने वाले होंगे।
So what will happen? There is a complete clarity. अगर मुझे पूछना होगा, जब टीचर को पूछना होगा कि अपलोड हुआ या नहीं, तो we would go to the first one. If we want to look at the bookshelves, then we would go to the second one. And if we want to see about the waste, then we would go to the third one. यानी कि proper authority, responsibility है, and किसको कितना काम करना है, and who is accountable for everything is mentioned. तो इसको हम डिवाइड करते हैं, एंड दिस मे कम, ये जो स्टेप्स हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, आइडेंटिफाई आपके किसी भी तरीके से आ जाते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो एग्जांपल देके आपसे पूछा गया कि विच फंक्शन डज इट से, तो ऑर्गेनाइजिंग. फिर सेकेंड आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं. तो स्टेप्स में हमारा क्या था कि स्कूल लाइब्रेरी में जो है वेकेशंस है, तो हमें क्या करना है, काम करना है. तो वो काम आइडेंटिफाई हुआ. सेकंड हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ. थर्ड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन हुआ. तो ये आपका जो है स्टेप्स है. द वेरी फर्स्ट स्टेप in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans. The work is divided into manageable. यानी कि कई बार क्या होता है बच्चा कि काम इतना होता है कि अगर हम एक ही जगह पर उस काम को दे देते हैं, तो मे बी that particular team or group may not do it. Example, in some of the companies we have accounts and finance, दो अलग अलग departments. We have two different departments where you have finance in another way and accounts आपका एक अलग होता है. क्यों? क्योंकि है तो दोनों सेम, लेकिन अकाउंट्स के अंदर आपका डे टू डे जो रूटीन आपके जो एंट्रीज हैं वो जा रहे हैं. फाइनेंस में यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ फाइनेंसिंग हैज टू बी. ऐसा क्यों किया जाता है? कंपनी बड़ी है, वहां पर दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, तो इट इज बिकमिंग डिफरेंट. तो कई बार हमें उसको देखना, दैट इज व्हाट वी से मैनेजेबल, so that duplication can be avoided and burden of work can be shared among the employees. Second is departmentalization. Now हमने उसको कर लिया भाई, जितने भी आपके वर्क है which is related to computers that would come under the IT. यानी कि आपको अगर आपका जो है सिस्टम ऑफ लैन वैन कुछ आपको लेना है, कैसे आपके यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कौन सा हार्डवेयर होगा, वो सारा आपका आईटी लेकर जा रहा है. सेकेंडली एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी है वो सारा आपका प्रोडक्शन में गया. और जो भी खरीदना है, चाहे वो ऑफिस के लिए आपके स्टेशनरी है, चाहे वो आपके प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है, सब कुछ परचेज डिपार्टमेंट में जा रहा है. तो हमने उसको पहले आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया, और अब हम उसको एक नाम देते हैं. व्हेन हमने उसको ग्रुप कर दिया सिमिलर वर्ड्स में, तो हम उसको नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं departmentalization. Once the work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. Such sets facilitate specialization. This grouping process is called departmentalization. Departments can be based on different criteria. और ये डिपेंड करता आपकी कंपनी का सेट क्या है. सम मे बी टेरिटोरियल, नॉर्थ साउथ वेस्ट, सम मे बी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वो आपके ऊपर है भाई, ये अप्लायंसेस का डिपार्टमेंट है, ये क्लोथ डिपार्टमेंट, और कई बार होता है नॉर्थ डिपार्टमेंट. तो दैट विल डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर योर कंपनी इज अडॉप्टिंग. अब हमने वो भी कर दिया. अब उसका कोई हेड होना चाहिए, ड्यूटीज असाइन करनी है, क्या क्या काम होगा, उनके नीचे कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कितना मैनेजेबल है. इट इज necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to various employees. Once departments have been formed, each of them is placed
अंडर द इंचार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि ये आपका हो जाएगा द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि एचओडी। आप उसको किस नाम से जानते हो क्लास 12 वो मत देखना, क्योंकि इन सम ऑफ द ऑफिसेज इट इज कॉल्ड एज मैनेजर, सम डिपार्टमेंटल हेड, तो वो अलग होते हैं। देन जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर्स, अब उसके नीचे कितने लोग काम करेंगे, व्हाट शुड बी द वर्क, मतलब कि भाई हम परचेज के अंदर ही हम देखेंगे स्टेशनरी एक के अंडर जाएगा, है तो एचओडी एक, उसके नीचे स्टेशनरी के लिए एक डाल देंगे। दूसरा जो होगा दैट पर्सन माइट बी लुकिंग फॉर द रॉ मटेरियल्स, तीसरा जो होगा वो कुछ और के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। It is essential for effective performance that a proper match is made between the nature of job and the ability of an individual. जो हमारा प्रिंसिपल है which says that development of each and every personnel, that यहाँ पर हमारा आता है, that work must be assigned to those who are best fitted to perform it well. उसके लिए जब हम अपने स्टाफिंग करते हैं तो उस वक्त we look for all these. देन अब ये तो हमने कर दिया डिपार्टमेंट कौन रहेगा, फिर उसके नीचे कैसे काम करने वाले होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर, उनके नीचे कितने कितने लोग काम कर सकते हैं। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, merely allocating work is not enough. Each individual should also know who he has to take orders from, to whom he is accountable. ये आपका जो है बहुत जरूरी है। The establishment of such clear relationship helps to create hierarchical structure and helps in coordination among various departments, क्योंकि जो हेड होगा वो दूसरे डिपार्टमेंट से उसी तरीके से जो नीचे काम कर रहा है व्हेन दे नीड टू वर्क, तो दे शुड आल्सो नो हाउ टू, जो हमारा स्केलर चेन में जो स्केलर चेन गैंग प्लैंक है वो सब यहाँ पर हमारा यूज होता है। So this is how we do it. Now, why do we need organizing? बहुत कम आता है इन द एग्जाम, बट प्रोसेस को तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। And when we are assigning the duties and establishing, so we also form that span of management, which means एक मैनेजर के नीचे कितने लोग हो सकते हैं जिसको वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, यानी कि डिपार्टमेंट आपका जो बन गया है डिपार्टमेंट, उसको हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं। So the very first is when you are dividing the work, when you are establishing the relationship, तो सबसे पहले जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि it should be done by the one who is best fitted, यानी अगर डिपार्टमेंटल हेड परचेज का है तो नेचुरल है कि उसको उससे रिलेटेड जो भी काम है, टर्म्स है, उससे रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल्स हैं, सब कुछ उसको समझ आए। Organizing leads to a systematic allocations of job among workforce. This reduces the workload as well as enhances productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis. Repetitive performance of a particular task allows the work to gain experience in that area and leads to specialization. आप कभी भी देखो, एक बहुत ही सिंपल सी मैं इसका एक फंडामेंटल बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि anyone who is new is not capable. Definitely every person has capability, and capability is not based on any age or it depends on how much you have acquired. बट फिर भी अगर आप देखोगे कि एक इंसान जिसने अभी ज्वाइन किया है एंड एक इंसान जिसने 5 साल पहले ज्वाइन किया, उसके काम करने के तरीके में बहुत फर्क आता है। एंड द रीजन इज एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजों को जो है वो मैनेज करना सीख जाता, दैट पर्सन बिकम स्पेशलाइज्ड। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप,
when you have organized, when you have established the relationship, आपने बता दिया है कि who is head, who is going to be your subordinate, who is going to be responsible, who is going to be accountable. The establishment of working relationship clarifies lines of communication and specifies who is to report to whom. This removes the ambiguity in transfer of information instruction, and it also helps in creating a hierarchical order. Hierarchical का मतलब होता बच्चा सबसे ऊपर, उसके नीचे, मतलब in a company it depends. बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग हिरार्की होती है. इन मेनी कंपनीज एक डिपार्टमेंट से सॉरी एक और उसके बीच में ही 4-5 मैनेजर्स होते हैं. यानी कि अगर आपने यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ तक पहुंचने में आपको इतने सारे, और किसी किसी में क्या होता है, डायरेक्ट होता है. दैट डिपेंड्स. तो ये आपका फिक्सिंग करते हैं व्हाइल वी आर ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज it will lead to proper usage of all material, financial, and human resources. The proper assignments of job avoid overlapping of work, also makes possible the best use of resources. Avoidance of duplication of work helps in preventing confusion and minimizing. किसका जिसका जो काम है वो वही करेगा. अभी हमने ये जो 12 स्टूडेंट्स का दिया था, अगर मान लो कि 12 स्टूडेंट्स में से हमने किसी बच्चे हमने मतलब छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन कि सभी बच्चों को, अगर मान लो कि उनमें से 6 बच्चों को बुक लगाना ही पसंद था, तो व्हाट विल हैपन इज दैट वर्क विल बी डबल. कोई हो सकता है ये ठीक से नहीं लगा, दोबारा लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो दैट मे बी इन द डुप्लीकेशन. Therefore it is very clear, मतलब कि we need to be very clear कि किसने क्या काम करना है और कैसे करना है. And then only वो जो टाइम, मनी, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं हो. Adaptation to change. The process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in business enterprise. ये तब होता है जैसे अभी फिलहाल के लिए I've been reading about some of the companies as a part of news. So I have seen that many of the companies have shut down their one particular unit. They have shut down one particular department. Organizing अगर स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि किस वाले यूनिट या किस वाले स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या किसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, या फिर वी वांट टू ऐड ऑन. हमारे प्रोडक्ट लाइंस है, अब हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी इजी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑलरेडी हैविंग, जैसे रिलायंस इंडिया है, दे आर हैविंग द डिविजनल वन. कॉस्मेटिक्स उनका पूरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उनका पूरा, गोल्ड उनका पूरा. नाउ इफ दे वांट टू गो फॉर समथिंग एल्स आल्सो, वो एक डिपार्टमेंट अलग से कर सकते हैं, एक पूरा डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं. It allows the organization structure to be suitably modified. The revision of interrelationship among the managerial level to pave the way for smooth transition. It also provides much needed stability to the enterprise as it can then continue to survive and grow in spite of changes. Effective administration. Clarity है तो administration अपने आप ही clear होता है. This is one of the very key unit I can say बच्चा, क्योंकि कई जगहों पर, कई कंपनीज, कई स्कूल्स में, because I have been there, तो मुझे एक चीज लगती है कि ऑर्गेनाइजिंग सेटअप अगर अच्छा होगा ना तो प्रॉपर आपका क्लैरिटी रहता, किसको क्या काम करना है. सी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, यहाँ आ जाता. Management of an enterprise thereby becomes easy and brings effectiveness in administration. Development of personnel, अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था, the work must be divided as best fitted. तो यानी कि अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान अगर 5 साल से उसमें काम करेगा,
So definitely he would have learned so many things. And then using the techniques of delegation, decentralization, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर ऑल्सो पावर्ड, they are also ready for the next level. Organizing stimulates creativity among the managers. Effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. जैसे HOD हमने बोला, he may be keeping only the main thing, मतलब जो कोऑर्डिनेट करना है, जहां उसको डिसाइड करना, वो शायद वो लेता होगा, और बाकी काम को उसके नीचे जो काम करते हैं उनको रखता होगा. The reduction in workload by delegation is not just because of limited capacity, but also allows the manager to develop new methods and ways of performing tasks. It gives them the time to explore areas of growth and opportunity, strengthening the company's competitive position. Delegation also develops in the subordinate the ability to deal effectively with challenges and helps them to realize their full potential. कई जगहों पर complete autonomy दिया जाता है. Expansion and growth. Organizing helps in the growth and diversification of an enterprise by enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges. जैसे एडिंग मोर जॉब डिपार्टमेंट, ये आप लोग प्लीज याद रखना कि व्हाट इज इट मीन, बिकॉज इट हैज कम इन द एग्जाम. एडिंग मोर जॉब्स, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स या फिर जोग्राफिकल टेरिटरीज, ये सारे आपके जो है एडिंग ऑन है. यानी कि जब आप उसको चेंज करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, या फिर आपको डिलीट करना है वो भी कर सकते हो. डिलीट इन द सेंस कि यू वांट कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हटा देना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका जो है दैट इज नॉट गिविंग यू द बेनिफिट्स, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट वाले डिवीजन को बंद कर सकते हो. एंड वो तभी तो पॉसिबल है ना जब आपके सामने वो क्लैरिटी है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट की रेवेन्यू कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट का मतलब कि सेल्स फोर्स कितना है. दैट विल ओनली कम देयर ओनली. अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट. पहले था हमारा प्रोसेस, फिर ये तो आपका एक ऐसा क्वेश्चन है विच 100% विल बी देयर. एज आई सेड, जैसे एक फ्रेम होता है जिसके अंदर तस्वीर होती है. नाउ इट डिपेंड्स कि आप गोल वाला फ्रेम लेना चाहते हो, आप मतलब कि यू वांट टू टेक अ स्क्वायर वन, यू वांट टू टेक मतलब कि पोर्ट्रेट, यू वांट टू टेक लैंडस्केप. सिमिलरली when you are deciding on a structure, वो आपका पूरा का पूरा कंपनी के प्रॉफिट को कहीं ना कहीं इट विल बी अफेक्टिंग, because structure will define the functions, structure will define what kind of work you are doing. Organization structure is the outcome of organizing process. An effective structure will result in increased profitability. The need for an adequate structure is felt by an enterprise when it grows in size or complexity. छोटी कंपनीज में कुछ नहीं है, छोटा मतलब बिल्कुल एक जहां सिर्फ 5-6 जने काम करें वहां ठीक है, लेकिन जहां व्हेन यू रियलाइज कि नाउ वी नीड प्रॉपर सिस्टम, वहां हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाता है. इन अ स्मॉल स्कूल we can assign the work according to the capability to the people. मतलब आप सोचो कि एक नर्सरी स्कूल है, राइट? अब नर्सरी स्कूल के अंदर भी आपके क्या है, यू विल बी हैविंग द एडमिशंस, you will be having the office work, right? There you will be having the library, there you will be having the classrooms, there you will be having the, मतलब आपके पास ये सारी चीजें तो होनी होनी है.
वहां पर भी आपका एडमिशन होगा, वहां पर भी ऑफिस का काम होगा, वहां पर भी लाइब्रेरी होगी, वहां पर भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे तो उनके क्लासरूम्स होंगे, यानी कि वहां पर भी टीचर्स होंगे, राइट। बट वहां पर आपका क्या है, नर्सरी स्कूल है तो वी डोंट हैव द विंग्स, प्री नर्सरी, नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, ओनली मतलब अभी प्री स्कूल है, से इट इज अ प्री स्कूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, मान लो एक, क्योंकि आजकल आपको पता है घरों के अंदर या स्मॉल एरियाज में भी होता है, एक कमरे के अंदर ही हम इन तीनों चीजों मतलब दोनों चीजों को डाल देंगे, क्योंकि प्री स्कूल है तो प्री स्कूल के लिए हमें सिर्फ 2 कमरे चाहिए होंगे, वहां पर बच्चे झूले सारे कुछ होंगे, एक लड़की को या फिर एक इंसान को बिठाएंगे जो कि रिसेप्शन, यानी कि जो आ रहा है एडमिशन और उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो एक इंसान देख लेगा, एक इंसान होगा जो बुक्स वगैरह का देख लेगा। देयर इज नो नीड फॉर डिपार्टमेंट्स। हाँ, काम को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू 3। आई एम हैविंग ओनली 4 और 5 पीपल, एक एडमिन एंड ऑफिस देख रही है, एक लाइब्रेरी बुक्स वगैरह रिलेटेड, क्लासरूम में मेरे 2 टीचर्स हैं, एक आया आंटी है और एक पियोन है, हो गया मेरा काम। लेकिन अगर ये स्कूल, ये प्री स्कूल बढ़कर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपके पास क्या है, यू आर हैविंग द प्राइमरी विंग, यू आर हैविंग द मिडिल विंग, यू आर हैविंग द सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी विंग। पहले तो आपके विंग्स ही अलग हो गए, क्योंकि सबका काम, सबका सिलेबस, सब कुछ अलग है। देन उससे रिलेटेड आपके जो काम होंगे, टीचर्स होंगे, स्कूल मतलब कि जो वो अलग हो जाएगा। तो यही आपका जो है एक कंपनी में भी होता है, वेयर देयर वर्क इज सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब सोल में उनको परचेज लेकर आना है, अकाउंट्स को भी नोटिस करना है एंड सेल्स को भी देखना है, तो 3 जना काम करके भी उस काम को कर लेगा। लेकिन अगर यही एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक प्रॉपर बिजनेस के अंदर एस्टैब्लिश हो गया है, तो उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा चाहिए होंगे, द वर्क विल बी, तो उनको जगह भी ज्यादा चाहिए होगी। सो दैट इज व्हाट वी से एज अ स्ट्रक्चर। It is only those enterprises which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a long time. However, it is important to understand that such stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise, as those companies which do not change at all will close down or cease to grow. As an organization grows, coordination becomes difficult due to emergence of new functions, increase in the structural hierarchies. Thus, for an organization to function smooth and face environmental changes, it becomes necessary to pay to its structure. यही आपको मैंने बताया कि एक स्कूल को ही ले लो जिनका प्री स्कूल है, भाई काम तो वहां पर भी होता है, बच्चे वहां पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज वहां 4 जने कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर स्कूल हो गया तो वहां पे आपकी वही 4 जने 4 डिपार्टमेंट बन जाते हैं। Similarly, if it is a sole trading, तो वहां पर you may be 4 or 5 people may be working, but when the same thing grows, उसका वो ग्रो हो गया है तो उनको उसको डिपार्टमेंट में बना देना पड़ता है। उस दिन I had given you the example of if you are going to buy a car, then you will be having 3 or 4 departments जो आप डील करते हो। Peter Drucker emphasizes on the importance of having organizational structure, means the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy. The organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. ये पेपर में आया हुआ है। It specifies the relations between the people, work, and resources. It allows correlation and coordination among human, physical, and financial resources and helps the company to accomplish the goals. The organization structure is the shown in an organization chart. ये आ गया आपका एक, मैंने जो आपको बताया था कि a very important one, the span of management
to a large extent gives shape to organizational structure. This question, I don't know if I take 10 years, this question will be there as a one marker only, but in all the papers. Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. This determines the levels of management in the structure. For example, ये पेपर के अंदर ना आया हुआ है tall and short span. Tall and short span. Right. Now, as I said, आपका एक डिपार्टमेंट है. किसी किसी कंपनी में क्या होता है, इनके नीचे एक है और उसके नीचे 1 2 3, फिर एक है उनके नीचे 1 2, और किसी किसी कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टली 1 2 3. तो ये जो शॉर्ट मतलब ग्रुप ज्यादा से ज्यादा बने, एंड दिस इज टॉल, क्योंकि जो आपका प्रमोशन होता है ना वो उसी के अकॉर्डिंग होता है. यहाँ पर क्या करते हैं, दो दो साल में वो लोग नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं. यहाँ पर दे वेट फॉर एटलीस्ट 5 years. A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations. An organization structure provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities. For example, Sunita opened her own travel agency. अब आप सोचो ट्रैवल एजेंसी में क्या क्या काम होता है. यू हैव, आपकी टिकटिंग भी होती है, देन आपके पैकेजेस का मतलब कि पूरा बनाना का भी होता है, देन देयर माइट बी वन जो कि पैसा वैसा लेने का काम करता हो. The success of a travel agency depends on a harmonious relations between customer and the employees of the travel agency. So she divided the entire work into 3 subhead. और उसने उसको क्या किया, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि एक इंसान मतलब एक डिपार्टमेंट का पूरा काम था कितना पैकेजेस सेल हो रहा है, एंड एडमिन का मतलब है इट मे बी रिलेटेड टू हाउ द वर्क इज डन. ऑपरेशंस इंक्लूडेड ट्रैवल काउंसलर, यानी कि जो समझाएगा, रिजर्वेशन टिकट एंड टिकटिंग एंड कस्टमर केयर. Sales included accounts executive, administration included bookkeeper, cashier, utility person. यानी कि काम इनके नीचे इतने सारे थे लेकिन उसने मोटा मोटा उसे 3 में कर दिया. This division of work on the basis of function, अब ये कैसा है, functional है, मतलब according to the work done, not according to the product, according to the work, has resulted into an organizational structure. यानी कि अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, इफ यू लुक इनटू द सेम एग्जाम्पल, I'm sorry, I didn't turn the wrong.
देयर आर ओनली 3 फंक्शंस। एक, काम करना, यानी कि जब कोई कस्टमर आएगा तो उसको समझाना, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनना, और टिकटिंग से रिलेटेड काम करना। अब टिकटिंग जब होगी तो उसको बेचा जाएगा, यानी कि उसकी एंट्री कहीं ना कहीं जाएगी, तो वो आपका सेल्स में आ गया। इवन तो वी कैन कॉल इट एज अकाउंट्स ऑल्सो। एंड जो एडमिन है, वहां पर स्टाफ का रिक्वायरमेंट, जो भी आपके पास आ रहा है वो, उससे रिलेटेड जितने काम है वो सारे एडमिन देखेगा। तो दिस इज हाउ 3 आपके जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट्स फॉर्म हुए हैं। यानी कि ये काम है ऑपरेशन का, ये काम है सेल्स का, ये काम है एडमिन का। मैंने जो अभी आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया, और उनके नीचे हो भी सकता है कि एक एक इंसान काम करता हो, 3 3 इंसान काम करते हो, बट दिस डिपार्टमेंट अगर कोई भी काम टिकट ट्रैवलिंग काउंट मतलब कि उससे रिलेटेड है, तो द पर्सन विल गो टू दिस डिपार्टमेंट। इफ दे हैव टू गो फॉर द अकाउंट्स वगैरह देखना है तो यहाँ पर जाएंगे। एंड इफ द कंपनी, यानी कि वो ट्रैवल एजेंसी को पर्सोनल्स चाहिए, एक इंसान छोड़कर चला गया है और एक इंसान यहाँ पर चाहिए, तो एडमिन डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो लोग यहाँ पर जो है स्टाफ को मैनेज करें। तो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। लाइक ट्रेडिंग में आपके लेस कम, मतलब कि आपके जो फंक्शंस होंगे वो कम होगा, प्रोडक्शन वाली कंपनीज में आपके ज्यादा होगा, but every company will be having some or the other organizational structure, and that is how, जब आप काम को डिवाइड कर दो, जैसे घर के अंदर भी एक छोटी सी शादी भी होती है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं काम को, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज एक्चुअली इन लेमैन टर्म। नाउ एज अ पार्ट ऑफ योर क्लास 12, जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट फंक्शनल, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक मतलब वो सारा स्टाफिंग का काम देख रहा। मार्केटिंग का काम है सब कुछ देखना, मतलब लोग कैसी चीजें पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्वॉट एनालिसिस प्रिपेयर करना, सेल्स टीम को प्रिपेयर करना। R&D देखता है कि व्हाट शुड बी द न्यू थिंग्स एडेड, परचेसिंग वाला जो है वो परचेस करता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं ये वाला, दिस इज द वन विच कम्स इन द एग्जाम, ये आपका जो है डिविजनल है। मैनेजिंग डायरेक्टर तो हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हो, कॉस्मेटिक एक अलग डिपार्टमेंट है, एक पूरा डिवीजन है, गारमेंट एक अलग डिवीजन है, फुटवेयर और एक डिवीजन है स्किन, और वो जो हमने ऊपर पढ़ा था ना ह्यूमन मार्केटिंग रिसर्च एंड, इन सब के अलग अलग होंगे। मतलब कॉस्मेटिक के ये अलग 4 होंगे, कॉस्मे उसका नाम क्या है, गारमेंट्स के 4 होंगे, फुटवेयर के 4 होंगे, स्किन केयर के 4 होंगे। रीजन, चारों बिल्कुल अलग है। कॉस्मेटिक्स में आपकी परचेसिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ अलग चलता है। इन द गारमेंट्स इट इज समथिंग डिफरेंट, इन द फुटवेयर इट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये आपके 4 पहले डिवीजन बन गए और उनके नीचे आपके फंक्शनल बन गए। तो दिस वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट, which is very very important in fact। देन डिफरेंस, एंड देन इसके बाद आपके जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेलीगेशन। और डेलीगेशन के आपके तीनों एलिमेंट्स, यानी कि अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। So that would be the entire chapter called organizing.